एल ओके टा Yes, uncle. Jai Baba, everyone. And Sam uncle has a sudden power failure, तो वो ज्वाइन करेंगे अभी. तब तक हम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. प्रेयर्स के स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए. और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. Good evening, everyone. Welcome to the Thursday program. Firstly, हम बाबा को इनवाइट करते हैं to this program कि वो आए और ये प्रोग्राम जैसे उन्हें चाहिए वैसे चलाए, हम सबको गाइड करें. So today we have Thadi and family. So, we have Surendra Thadeji and Nitin Thadeji. Jai Baba. Jai Baba. And Sanjay Thadeji will join from Calcutta, and Deepak ji will also join from Ahmednagar. So Surendra ji and Nitin ji, आपसे स्टार्ट करते हैं. So आप जय बाबा. start करें. संजय थाड़े ज्वाइन कर चुके हैं. ओके. संजय जी नमस्ते. जय बाबा. जय बाबा. जी, ओवर टू यू. आज बहुत खुशी है कि प्रीतम अवतार मेहर बाबा के अपने सेंटर जो केंद्र हमारा मुंबई से है, वहाँ से हमें ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है. मैं श्याम पटेल अंकल और टेनिस मैडम का भी शुक्रगुजार करता हूँ. और मेरे साथ पुणे केंद्र से, पुणे के घर से सुरेंद्र थाड़े जो मेरे अंकल है, सबसे छोटे अंकल, मतलब मेरे पापा के भाई, और एक सेक्रेटरी पुणे सेंटर, वो भी ज्वाइन हो चुके हैं. कलकत्ता से संजय थाड़ी जी भी स्क्रीन पर नजर आए, वो ज्वाइन हो चुके हैं. अहमदनगर से दीपक जी के साथ उनकी कन्या दिव्या थाड़े वो भी है. और कल्पना रचना, डॉक्टर रचना, दैट इज कल्पना थाड़े, वो पुणे से है, सकार नगर से ज्वाइन हो चुके हैं. तो हमारे पूरे परिवार के ये सब मेंबर्स हैं, वो आज ज्वाइन हो चुके हैं. अलग अलग सिटी से सब ज्वाइन हो चुके हैं. और मुझे लगता है संजय थाड़ी जी से शुरुआत हुई तो मैं थोड़ा ठीक रहेगा. मैं तो एनी टाइम मैं बात कर सकता हूँ, इफ ही इज ऑलरेडी देयर. हाँ जी. इंट्रोडक्टरी या. तो मैं थोड़ा ब्रीफ देना चाहूंगी. सारी फैमिली सब लोग जानते हैं. अमर तिथि में देखा है, सुना है इन सबको. तो टुडे आज हम इनका एक्सपीरियंस भी सुनेंगे. तो संजय जी आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं. अनम्यूट.
हाँ जी। Can you see me? No, I can't see you. हाँ जी, अभी देख। Okay, Jai Baba, Janice, Jai Jai Baba. Baba, Sam, Sam. Sam uncle is joining again. उनका May I know she's sudden काम joining? failure. May I know she's joining? May I know हाँ she- जी, Okay, I'll check maybe later join हाँ, करेंगे. just see because this. Jimmy Khan uncle is here. Okay, Jimmy Khan uncle is here. Okay. सबसे पहले जय बाबा to all of you and thank Baba and thank the Mumbai Center who has given this opportunity to Ade family to share their experiences and bhajans and everything. Now yesterday when Sam called me and asked me how did you come in the contact with Meher Baba? How you were convinced that Meher Baba is God? That was his simple, plain and question. So my reply to him was that since I was born or my generation was born, we believed that Meher Baba is God for the simple reason that the one generation above, that is my father, my father's elder brother, and the entire family member, his maternal uncle, his mother, and all, they first came in contact with Meher Baba. And we all, our generation do not try to, our generation don't try to understand Meher Baba from the intellect point of view. We have read the Baba's books, God Speaks, Wayfarer, Discourses, etc., etc. But since we were born and since our family came in contact with Baba, we believed Baba, and all of us have been singing bhajans, performing dances, performing small skits in front of Baba when Baba was in physical form. The day on which our family came in contact with Baba was 1st June 1948. I was not born. My father's elder brother, Sam, Jai Baba. Jai Meher Baba, sir. How are you? Good. So I'm trying to explain as to how our family came in contact with Baba. Yes. The day was 1st June 1948. We were not born. My father, K.B. Thade, and his elder brother, L.P. Thade, and Mr. Narayan Bandalu, who happened to be their maternal uncle, and 2-3 other family members, members of Pune Center. They have got an opportunity to see Baba for the first time on 1st June 1948. We were not born. Since a bus had gone from Pune to Meherabad, where Baba had asked the people to come and have their darshan, that is how they encounter. To bring our family into Baba's fold, there were many people who were responsible. One of the main person was Dr. Ramchandra Gadekar, the present Gadekar's father, Digambar Gadekar's father, and Baba's Bamcham, great what we call Abdul Ghani Munsif, who was Baba's friend and who used to play with Baba, marbles, cards, cricket, Atya Patya, Langori, all these things. These and Khak Sahab, you must have heard about him. He has written a lot of Baba's ghazal. These were the people who had chosen to get into Baba's fold. How it happened was when these youngsters, when they were just getting out of the college and trying to get into some job and all, they started developing interest in the Theosophical Society in Pune was there. So they were reading about spirituality, this, that, and all. One day it so happened that our family members, my parents, my father and his elder brother, they were staying with their great-grandfather, Mr. Yallappa Bandelu, whose daughter was Subhadra, who later married to Madhusudan. And my grandmother was
of Subhadra. Subhadra was my grandmother's youngest sister. So they were staying, they had come here to study, and there was one book which was lying there, was I think discourses or some book from C.D. Deshmukh. C.D. Deshmukh, the great old Baba lover. They got hand on that book, and after they started knowing it, and after that they developed an interest, and they went to Theosophical Society of India, where they got lectures given by either Abdul Ghani, Dr. Abdul Ghani, or Digambar Gadekar, all this. And after that, the famous Bhajan Mandali was born. Since my uncle, Mr. L.B. Thade, who used to conduct the Amar Tithi program since its inception, he was the superintendent of a hostel. In that hostel, what used to happen is that he had got a big house in the superintendent's quarter. He had got for the hostel, and that quarter, my grandmother was very affectionate, and once they developed Baba, they used to have Baba's satsang, but not by that time Baba's bhajans were not developed. Madhusudan and all other things, they came later into Baba's fold. So they used to keep Baba's photos, Baba's program, and sing Ram's bhajan, Krishna's bhajan, and other things. In that hostel, Pratap Ahir was studying, Dr. Rangole was studying, Mr. Bade, Mr. Chavan, lot of people were studying. And during those times, Mr. Kamble, Mr. Shinde, Mr. Patil, they were the people who came in fold of Baba, and that is how there was another one gentleman, the South Indian gentleman who was a part, I forgot his name. They all started Baba's bhajan. They started all Baba's bhajan, and that's how the center started. Earlier, what used to happen is, one day, Mr. Thade's house, there is a bhajan. Another day, Mr. Bandeli's house bhajan. The third day, it will be Mr. Ramchandra Gaikwad's house bhajan. And the fourth day, it's somebody else's bhajan. That's how. The actual Pune center, which was, established, that was the foundation stone of Pune center, was laid by Baba. And on 1st May 1964, the Pune center was opened. I remember my age at that time was 5 years old, and I distinctly the entire scene as to where Baba was sitting and where we were sitting and where the bhajans were sang and how people were taking the darshan. There is a small room which you see in Pune center, which is in the right hand side. If Baba is facing us, the small room where Baba sat, the chair on which Baba sat, what the sleepers or the chappal which Baba wore, on the bed on which everything is kept as it is. So we have got, my mother sang a bhajan, my Chachi Sunita Thade, Tai we call it as the LB Thade, they all sang. Madhusudan, Surendra Thade, who is there today, was a part of the chorus, and he was helping Madhusudan, Narendra Thade, Pratap Ahir and all. And then there was a Namdev. There was a Namdev Solapure. These were the people, they were all part of the Pune Bhajan Mandali. Mr. K. and Soman was there. Wawle family was there. And Eherji were there. Shorab, Rustam, all of them were part of that thing. And at that time, Baba had said that exactly after 1 year, I will again give a darshan in Pune. And again on 1st May 1965, Baba came back to the darshan, and he promised 1 day, but he kept giving darshan for 7 days. He stayed in Guru Prasad. We remember more than 6,000, 6,500 Baba Premis all came from all over the country, including Nauranga and some portion in South and Hamirpur and Dehradun and whatnot, Kutum Shastri and all this. You must be knowing Sam. You must be knowing these people. Now, Mr. Gadekar, Mr. Digambar Gadekar, so Bandelu family, Gaikwad family, they were all this thing. Later of what happened was this, as I told you, my grandmother was also very, very, passionate Baba lover, and she was a good friend with this
she was very good friend with Gulmai, to whom Baba used to call my spiritual mother. So when my uncle was in Mumbai, Ahmednagar, that time they used to meet regularly. Now there are many incidences which I will tell you. One incident I'll tell you about Mr. When for the first time my family members, Mr. Thade and my father, they saw Baba. So what happened was, when they saw in 1948, when they saw Mr. L.B. Thade. Why I am telling you, as to you asked me yesterday, Sam, as to how we came into Baba's fold and how we started believing that Baba is this thing. Later, I will also narrate two of my experiences, and also my brother Nitin is also going to narrate something. My uncle Surendra Thade, he will also say when we came rubaru to Baba, face to Baba, what all had happened in this thing. So when first time when Mr. L.B. Thade, he went to Baba, so Baba asked him, do you read my books? So Mr. L.B. Thade, he had said he had read only one book of Baba, that was by Mr. C.D. Deshmukh, that Sayings of Meher Baba. That was the only thing which was very accidentally, which was kept in their grandfather's house, and they had read it. Baba, then he gathered a courage and said, Baba, yes, I read your book, and I am doing my MSc. Then Baba laughed and said, do your MSc or PhD, but remember one thing, be good to others and I am always with you. This was the thing which he said. Then came the turn of my father, who was the younger brother to Mr. L.B. Thade. So when he entered the room, he felt that room is filled with, lots of rose color atmosphere. That is what he narrated to us, because it was his experience, and which faded away. Initially, it was the whole thing which faded away. And then he saw Baba's glowing face. Initially, when he entered, he saw the entire room is totally filled with, color, with the rose color. Baba asked him, what do you want? He asked him. He said, I want to serve my parents, society, and God. No, this is what it came from his mind. And Baba said, you are aspiring for very high ideas. Whatever you want to do, make it a firm resolution. My love and blessings are with you. Then came the turn of one of our another family member, Narayan Bandelu. Baba asked him, what do you want to say? Narayan asked, Baba, when are you going to manifest? That before that time, all these were the young upgrowing guys. They must have heard all the sermons and other things. Therefore, all these things must have come to their thought. So Baba smiled and in amusement and said, after 100 years, don't worry about my manifestation, just love me. These were the things, these were the first encounters. There is another incident when, Meher Baba, our beloved Meher Baba, had decided to visit 5 family members, Baba lovers, in Pune. And one of the family was our family, Thade family. Another was Mr. Bandelu. Then there Mr. Ramchandra Gaikwad, Madhusudan, and the 5th one, I don't remember this thing. The day was 1961. 1961, in the month of May, he visited. My age at that time was 1 year and 4 months. My cousin, L.B. Thade's daughter, she is just 37 days younger to me. She was 1 year and 3 months time. So Baba had come to our house. Before that, Baba had given an instruction saying that I am going to visit 5 family. So our turn came in the month of May 1960. And Baba said, I will come and stay there for 10 minutes. Everyone still have that photograph where Baba came to our family. Members of the family, they chose one of the best saris which they had in their house, and the sari was tied in the back side of the chair where Baba was sitting, and on the left hand side of that, when Baba was sitting, my father stood and I am in his lap. On the right hand side, L.B. Thade and my sister is in lap. Mr. Surendra Thade, that photo, Nitin, just show the photograph. Show the photograph to everybody. Can you see this photograph?
Yes, yes, yes. The right hand side, first is Narendra Thade, then I am this child, then my father, and in between Baba is sitting, and again left hand side, LB Thade, this thing, my mother is, my chachi is there, Tai is there, my Atya is there, my grandfather is there, Surendra Thade is there, and Mahendra Bandelu, and Kalawat, and two maid were working at our house. They also had the fortune of having, one's name was Tara, they were looking after us. So this is the photograph which was taken by a Milan Photos. Today everybody knows the name. Now, so I will narrate an incident about what happened with. So what happened since Baba was coming, and we all knew that for Baba a little less spicy food to be prepared, and it's in general a practice that we prepare batata vada when somebody comes, and shira. I think Sam, you are from Bombay, you will understand those words. So that shira and batata vada was prepared, and a special batata vada was prepared for Meher Baba, and ice cream was also prepared. Ice cream was made at home. That less spicy batata vada in pure ghee was prepared for Baba, and for other members it was not. Everybody was very much prepared, and along with Baba, I will tell you. I will tell you the name of the person who came along with Baba on that this thing. Ghorpadi. This was the Ghorpadi. It was the 2nd May, 1962. Mr. Loot Dimple, who was a Baba's lover, he was accompanying Baba. So this was prepared, and the whole everybody was very excited. One day before, Reiki was done by some Baba's Mandali to find out what this thing. Baba came, everything was there. He came in his ambassador car. He was taken, he went inside. Our house number was G10 Ghorpadi, which is in Shivkirti in Pune. It was a government quarters. So everything was there along with us. Some of our neighbors were also part of there. So a special bhajan was prepared for it, and that bhajan was sung. That bhajan was Dhana Dhana Bhag Dhanya Janam Aaj. This is a Madhusudan bhajan. Right. So this is the bhajan which I have got a recorded version which I send it. I will play it later, and I'll also do it. Baba, then everything happened. Bhajan happened. Baba was very, very happy, and this thing was served. So my Bua Shobha Khartare, Shobha Thade, in a hurry, in a haste, she forgot to give the vadas which were prepared for Baba. Instead, she gave the batata vada which was prepared for everybody. That's the spicy one, and the shira. And but Baba knew it. Baba didn't say anything. Then everybody asked, "How is it? How is vada?" And Baba said, "Very good, very nice." Baba was very happy. He was supposed to stay for 10 minutes, but he was there for more than 1 hour in our house. And there lots of bhajans were there and other thing. And the shira was given. When ice cream was served to Baba, Baba had his 1 scoop of ice cream Baba had himself. And then thereafter, the remaining portion of the ice cream was served to all of us as his prasad. The one ice cream which was touched by Baba. And Baba was very happy, and he showed as the program ended, after the aartis and the prayer. And Baba said to Loot Dimple, who was sitting near him, the Thade family is one of my most devoted families in India. Their love touches my heart very deeply. These were the remarks Baba said. And this is how this is what this thing. So what I mean to say, now I will narrate about 2 incidences, then I would request my cousin Nitin and my uncle Surendra to sing to this thing. Then I will keep on bhajan, and then we will keep on some narrating the stories and all. So my sister Alka, she is in Canada, LB Thade's sister. She's just 37 days younger to me. She is settled in Canada. What was happening was Mr. LB Thade was, Mrs. Thade, my Bua, my Chachi,
she was not conceiving. All the child which were born, they were not surviving. So she went and fought with Baba. Why this is happening? Why I am not getting a child? This, that, and all. Then Baba said, don't worry, just believe me, give this thing. And Baba gave her, after some time, after 1 or 2 miscarriages, Baba gave her a chocolate and said that you eat it, don't worry. And after some time, she was conceived. She conceived, and but when she was expecting, before that, my chachi, she had little doubt whether Baba is a god or not, because after marriage they came to Baba's fold and all. Our case, when we were born, we knew that Baba is a god, because that is what was taught to us when we were born, and that is what our samskara started with that thing, that he is the god. Even today, any function which takes place in our family, though we belong to Hindu religion, we may have to perform certain things according to religion. Whatever it may be, our function never ends or starts before Baba's bhajan, aarti, and prayer. It may so happen that marriage will be there, Pandit will come, he will say something, but it is a bhajan, aarti, and prayer is a must in our house, and whatever may be the occasion, including if somebody passes away or anything, including that, no function. So when she was conceived, Baba had told that when she was delivered a girl, Baba had told that this girl, Alka, should not be taken home. You have to bring her from the hospital directly to me. So it was in Randive's hospital in Pune. She was brought to Baba. Baba kissed her, and Baba said, nobody will kiss her for next 3 months. And that is how she went and this thing. So his grace was there. And because of that, this thing, and our family always followed. In my case, what happened was, my mother is from Nagpur. So I was born in Nagpur, and after 3 months, usually the first delivery takes place at the mother's place. So, and after 3.5 months, I was brought in 1959. When Baba was in Guru Prasad, I was straight away taken to Baba. Baba took me in his lap and said that he is a one. Thereafter, I will play one bhajan which I have sung for Amar Titi. Suru kaka, bhajan suru kara. When Baba came to our house at Gurpadi, the bhajan was sang, that is, Dhana Dhana Bhaga hai Janna Janma Mero, Aaj Safal Karayo, Aaj Mili Sagar Se Sarita Apne Aap Bulayo, मैंने जिसकी आस थी मन में आज सुधने वो आयो. धन धन भाग है धन्य जीवन मोरो आज सफल करायो. आज मिली सागर से सरिता, आज मिली सागर से सरिता, अपने आप बुलायो. मैंने जिसकी आस की मन में आज सुदिन को आयो. मैंने जिसकी आस की मन में आज सुदिन को आयो. देखत नैन हुए है बावरे, आज अनुप पायो. देखत नैन हुए है बावरे, आज अनुप पायो. मोहलियो मन सुंदर मुखने, मोहलियो मन सुंदर मुखने, गयो सुध बुध बिसरायो. मैंने जिसकी आस की मन में
साच कही तोरी महिमा सबने तेरो अंत न पायो। साच कही तोरी महिमा सबने तेरो अंत न पायो। ज्ञान से जान सके ना कोई, ज्ञान से जान सके ना कोई, प्रेम से सबने पायो। मैंने जिसकी आस की मन में आज सुदिन को आयो। किस विध कहूँ मैं मोर जिया में आनंद नहीं समायो। किस विध कहूँ मैं मोर जिया में आनंद नहीं समायो। मधुसूदन कहे बार बार यही, मधुसूदन कहे बार बार यही, आग बढ़े मैं पायो। मैंने जिसकी आस की मन में आज सुदिन को आयो। मोरे मन की आस पुरायो, मोरे मन की आस पुरायो, मेहर दर्श दिखायो। मैंने जिसकी आस के मन में आज सुदिन को आयो। मैंने जिसकी आस के मन में आज सुदिन को आयो। जय मेहर बाबा सर, आपने 2-2.5 साल बाद ये भजन हमें सुनने मिला, एंड दैट ऑल्सो इन परफेक्ट वो मधुसूदन के बराबर स्टाइल में आपने गाया। थैंक यू वेरी मच। ये आज सुदिन हमारा आया। जय बाबा सर। गुरु काका तुम्ही अजून एखादं भजन म्हणता का? एक भजन म्हणा. See, there are a good number of funny incidences which one incident my brother Nitin, who is sitting with my uncle Surendra, is Ji. going to narrate. All of us as a children, we have performed dances before Baba, and one of that incidents related to when we were dancing before Baba, Nitin will narrate. And we have performed many times before Baba, and we have got a very, very clear memory of, seeing Baba. And last one was that 1967 when he walked on the corridors of Gurudwara, and all the lovers were standing on both sides. He was helped by Bauji and Eraj when after this thing, and everybody was shouting Avatar Meher Baba ki jai. Like we have so many memories, but I would request Nitin to sing a bhajan and also narrate his incident. नितीन एक भजन म्हण आणि इन्सिडेंट करे लवकर. मधुसूदन तर म्हणलं तर बरं होईल. सॅमला मजा येईल मधुसूदन. इंसिडेंट Sam will enjoy if you sing Madhusudan bhajan. Other people, see, most of the Baba lovers, they always enjoy Madhusudan bhajan because they have been sang in all the places. Sorry for the interruption. There is a gentleman called Mr. Rajiv. Rajiv is my brother. Oh, I'm sorry to tell me, my brother Rajiv. He has raised his hand. उन्होंने कुछ बोलना चाहते हैं. राजीव जी बोलिए. नहीं माइंड, कुछ बोल नहीं रहे. चलिए आप शुरू कीजिए. तो भजन कार्यक्रम भी म्हणतो एक जैसे जैसे आपको अच्छा लगे. मैंने बाबा के सामने जो भजन गाया था गुरु प्रसाद में, बाबा जब आते थे तो उस वक्त मैं 10 साल का था. तो बाबा के सामने एक मैंने कबीर का एक कवारी टाइप भजन है, अरे वाह, गाया था. बाबा बहुत खुश हो रहे थे जब मैं गा रहा था, और जैसा मैं एक्शन करके गा रहा था बाबा वही एक्शन कर रहे थे.
और बड़ा मजे का भजन है, थोड़ा आपको सुनाता हूँ। जी अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे चलियो, 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 जिंदे बाप को और मरे बाद पछताइयो, जिंदे बाप को भूल गए और मरे बाद पछताइयो, मुठ भर चावल घर पे धर के, मुठ भर चावल घर पे धर के कौआ बाप बुलाइयो, हाँ भजन बिना कैसे चलियो, एक्शन करा एक्शन। हाँ भजन बिना कैसे चलियो, अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे चलियो, पत्थर का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाई, पत्थर का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाई, अरे सच्चा नाग जब घर में निकला, सच्चा नाग जब घर में निकला, लाठी दब गइयो रे, भजन बिना पैसे चलियो, अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे चलियो, अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे चलियो, सवा शेर का रोट बनाकर देवी को चढ़वइयो, सवा शेर का रोट बनाकर देवी को चढ़वइयो, अरे देवी बिचारी खावे न पीवे, देवी बिचारी खावे न पीवे, आप हिल मिल कहियो रे, भजन बिना कैसे चलियो, अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे चलियो, अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे चलियो, कहत कबीरा सुन भाई साधु दुनिया भई दीवानी, कहत कबीरा सुन भाई साधु दुनिया भई दीवानी, अरे सच्चे देव को भूल गए, सच्चे देव को भूल गए, अरे महादेव को भूल गए, और पूजन लागे भवानी रे, भजन बिना कैसे चलियो, अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे चलियो, अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे चलियो। जय बाबा, वेरी नाइस सर। अब ऐसा गा रहे थे हाथ करके, करना था ना वो एक्शन। बाबा भी वही स्टाइल कर रहे थे, हाँ वो करना था, मैं बोला एक्शन करा। उठा के अपने गले से लगा लिया, मैं सब भूल गया, पता नहीं चल रहा पूरा गुरु प्रसाद का हाल जिस तरीके से उस वक्त ये हो रहा था, जिंदगी का एक ऐसा अनूठा अनुभव है, हाँ दोबारा मेरे को नहीं आया। जी जी जी। Sam, these both the bhajans which you heard were sang before Baba by the members. जी आप कह रहे थे राजीव ने हाथ उठाया. राजीव is my younger brother and now he is presently the chairman of Pune Center. ओ शाबाश। Pune Center, and another brother is the Nagar Center secretary. Who is going to sing? He is gone specially. I think he is gone to Dhuni, and from Dhuni he is going to sing a bhajan. आज धुनी का भी दिन है। यस इसे भजन गाने वाला है. मेरे को बोला है कि I will sing a song from Dhuni. अरे वाह। ठीक है. Now Nitin, you want to say something? जी जी जी। हाँ, नितिन का एक किस्सा बोलिए सुन. बोलिए। जय बाबा जय मेहर बाबा। जय मेहर बाबा। जैसे संजय भाई साहब ने बताया कि हम सभी भाई बहनों को अपॉर्चुनिटी मिली बाबा के सामने दर्शन की। मेरा बर्थ डेट 24 अगस्त 1968, सो बाबा 9 इयर्स तक हमें दर्शन का लाभ हुआ है। स्पेशली एक दो बार तो मुझे जो याद है बाबा का एक दर्शन मुझे थोड़ा सा याद आता है, क्योंकि मेरे पापा लक्ष्मीकांत जी थाड़े और मदर
ये लोग हमें गोद में उठा लेते थे। जब भी गुरु प्रसाद का दर्शन होता था, बाबा के बिल्कुल पैरों के पास हम लोग माथा रखते थे। मुझे वो पर्टिकुलर बाबा के बिल्कुल वो दर्शन याद है कि बाबा के पैर मैंने देखे, कोई ऑर्डिनरी मतलब नहीं थे, बिल्कुल पिंकिश, अलग से एक टिंज उसमें नजर आ रही थी और अनोखे। तो मुझे आज वही स्पॉट बिल्कुल नजर आता है, क्योंकि 8-9 साल तक इतना रिमेम्बर नहीं होता, लेकिन वो बहुत ही अलग किस्सा मुझे बाबा का दर्शन का याद है। दूसरा एक किस्सा जो था कि गुरु प्रसाद में हम सभी भाई बहनों को परफॉर्म करने के लिए बोला गया था, और हमने एक असावा सुंदर चॉकलेट का बंगला, इट्स मराठी, वो डांस काफी आफ्टर रिगरस प्रैक्टिस हमने प्रिपेयर किया था। तो उस टाइम हम जैसे संजय भाई साहब और अलका ज्यादा उनके डिस्टेंस नहीं है, लेकिन मैं उनसे थोड़ा छोटा था 1.5 साल से। तो हम 4-5 भाई, अभी रचना कल्पना भी ज्वाइन हुई है, वो भी डांस प्रोग्राम में थे। हम लोग 4-5 भाई बहन, अलका ऑल्सो, असावा सुंदर चॉकलेट का बंगला, ये गाने का बोल थे। तो हमने शुरू किया, हालांकि मैं उस टाइम बहुत मोटा था, बहुत ही ज्यादा मोटा था मतलब। तो मुझे एक्शन, तो मैं आई वाज प्रिपेयर्ड एक्चुअली, मुझे एक्शन करना इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंड एंड परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ बाबा, क्योंकि पहली लाइन होती थी तो दूसरी लाइन शुरू होती थी तो मेरी पहली लाइन कंप्लीट होती थी। तो ये बहुत स्लो जा रहा था मैं, और जैसे मैं स्लो एक्शन करता तो बाबा बहुत हंस रहे थे उस टाइम। मम्मी बताती थी, पापा बताते कि बाबा हंस हंस के बिल्कुल लाल हो गए थे, और बाबा इतने एरेज भाई को बता रहे थे, देखो कितना सिंसियरली कर रहा है, इवन दो ही इज एक्चुअली स्लो इन हिज परफॉर्मेंस, ही इज डूइंग इट प्रॉपरली। जो भी उसको पता है तो वो मेरा बिल्कुल ऑर्डर फॉलो कर रहा है। और जब सबका गाना कंप्लीट हो, उसके आधा 1 मिनट बाद मेरा डांस का एक्शन हुआ। बाबा को इतना अच्छा लगा, और बाबा ने कहा कि ही इज माय डिसाइपल, और वो पूरा एक्शन प्रॉपर कर रहा है और मेरे ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो ये बाबा के काफी ऐसे एक्सपीरियंसेस है कि जो मैंने है रिगार्डिंग मैं 1989 में महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन से डायरेक्टली क्लास 1 ऑफिसर करके सिलेक्ट हुआ था। तो उन दिनों इंटरव्यू के टाइम में हमारे जेके रांगोले काका, जो कि उस टाइम सेक्रेटरी नगर हुआ, सेक्रेटरी मेहर बाबा सेंटर अहमदनगर हुआ करते थे, उनको 2 दिन पहले मिला था कि काका मेरी इंटरव्यू में मैंने काफी पढ़ाई की है, और अभी 170 पोस्ट है, और अभी ओनली 300 लोगों को ही मतलब लास्ट स्क्रीनिंग में बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। उसके पहले 1 लाख बच्चे बैठे थे प्रीलिम में, बाकी रिटर्न एग्जाम को 10,000 थे। लास्ट में 300 बच्चे 399 समथिंग, तो 170 पोस्ट थे। तो मैंने 1:3 सिलेक्शन था। तो मैं काका को मिला, रांगोली काका बहुत ही पहले से ही मतलब सेंटर में रहते थे। तो मुझसे मैंने बोला कि काका मेरा इंटरव्यू पुणे में है, और देखो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंटरव्यू में मार्क्स मिलना बहुत जरूरी, क्योंकि इतना पढ़ाई किया, अभी इतना स्क्रीन होके आ गया, तो मैं बाबा को प्रार्थना करता हूँ। तो मैंने ऐसे बोला कि बाबा के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो काफी ठीक रहेगा। तो काका बोला ऐसा करो, बुक रखी है वो बेटा पढ़ ले। तो उसके 2-3 पेज तो बिल्कुल फटे हुए थे, तो मैंने ऐसा 25-26वां पेज निकाला, उसमें एक्सप्लेन किया था स्टेप्स इन स्पिरिचुअल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे पिरामिड डायग्राम वाज देयर, स्टेप्स इन स्पिरिचुअल एडमिनिस्ट्रेशन लिखा गया था। तो मैंने वो पढ़ लिया, 2-3 पेजेस पढ़ा, और बस मुझे याद रहा उस दिन इंटरव्यू था तो 18 कैंडिडेट्स वर देयर, और मेरा नंबर 18 था, लास्ट नंबर था। तो इंटरव्यू जाने के बाद 2-3 क्वेश्चन पूछे, तो आई वाज स्लाइटली डिस्टर्ब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इट इज डेफिनेटली गोइंग टू पोज अ सीरियस प्रॉब्लम। सो एक क्या हुआ, एक क्वेश्चन पूछे तो आई वाज वेरी मच डिस्टर्ब। तो मैंने क्या किया, मेरे पास मेरा बायोडाटा था, मैंने बायोडाटा देखकर वो दूसरे सब चेयरमैन के पास मेरा बायोडाटा बताया। तो बायोडाटा उसमें एड्रेस था मेहर आशीष, वसंत टेकड़ी, अवतार, औरंगाबाद रोड, अहमदनगर। तो उन्होंने मेरा बायोडाटा पढ़ने के बाद पूछा, मेहर आशीष, योर बैंगलोर नेम इज मेहर आशीष, सो मिस्टर नितिन थाड़े, आर यू डिसाइपल ऑफ अवतार मेहर बाबा? अरे वाह। मैं बोला सर यस 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 आई एम। तो टेल मी बाबा अवतार क्यों है, आप बता सकते हो?
ये क्वेश्चन उस टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 मिनट्स आ गया, तो मैंने बोला ये तो क्वेश्चन तो मेरा ही है। तो मैंने इमीडिएटली बाबा को उनको बोला कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नरेट व्हाई बाबा इज अवतार। हम तो मानते कि इज अवतार ऑफ एज, लेकिन इतने 2 मिनट्स में एक्सप्लेन करना काफी डिफिकल्ट है। लेकिन माय पैशन, मेरी जो अटैचमेंट है वो मुझे जरूर कहती है कि बाबा अवतार है, और मेरे पापा, हम पूरी परिवार से बाबा को अवतार मानते हैं, और बस हम मानते हैं बाबा अवतार है। और मैंने काफी फिर वो स्टेप्स इन फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन जो पेजेस पढ़ा था, हाँ वो जब उनको एक्सप्लेन कर दिया और 5 to 10 उसमें 6 मिनट चले गए। तो इट्स बिग स्पैन। सो ओनली 4 मिनट बच्चे फिर और कुछ क्वेश्चन पूछे तो 20 मिनट्स कंप्लीट हो गए। सो वो दैट 6 मिनट्स वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें मैंने डाइवर्ट कर दिया था उनका अटेंशन। बाबा ने डाइवर्ट कर दिया ऑन द कॉन्ट्ररी। 11 मिनट्स को मुझे लगा कि बाबा थोड़ा आप जरा हेल्प कीजिए, तो बाबा ने इमीडिएटली वो मैंने फाइल बताया तो दैट क्वेश्चन उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, एंड आई टुक एक्चुअली 6 to 7 मिनट्स। उसमें वो ओवरऑल कंप्लीट हो गया। बाद में रिजल्ट आया तो आई वाज 100% श्योर अबाउट माय सिलेक्शन। तो सिलेक्ट हो गया, आई वाज डायरेक्टली सिलेक्टेड एज ए डेप्यूटी सीईओ क्लास 1 इन 1989। तो उस टाइम क्या होता है कि एड्रेस थोड़ा गलत हो गया था मेरा, मतलब फ्रॉम मंत्रालय साइड, कि औरंगाबाद रोड अहमदनगर है, और वो गलती से साइक्लोसाइल आते, उन दिनों कंप्यूटर नहीं होता था, तो साइक्लोसाइल की पट्टी लगाते थे और औरंगाबाद रोड औरंगाबाद ऐसा एड्रेस आ गया। तो आई वाज वेरी मच डिस्टर्ब, और मैंने जाके भी उनसे लेटर लिया कि देखो ये एड्रेस गलत हो रहा है, व्हाइल गिविंग मी पोस्टिंग आप लोग थोड़ा दूर चला जाऊंगा। नहीं, उन्होंने रिटर्न में ले गए, ऐसा होगा नहीं और हम लोग करेक्ट करेंगे। और 1 साल के बाद जब मेरा पोस्टिंग आया तो नितिन थाड़े प्लेस औरंगाबाद, दैट इज वाई आपका प्लेसमेंट है वो अमरावती ऐसा आ गया। सो 2 डिवीजन में दूर चला गया बिकॉज ऑफ दैट सिंपल मिस्टेक ऑफ क्लरिकल मिस्टेक। औरंगाबाद, शायद अहमदनगर लिखते तो औरंगाबाद मिलता, क्योंकि इतना दूर तो नहीं जाते, 2 डिवीजन दूर जाना ऐसा तो जनरली होता नहीं है। सो आई वाज वेरी मच डिस्टर्ब, और मैं पिताजी को बोला पापा ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दूर जा रहा हूँ, अमरावती बहुत दूर है, काफी दूर है। पापा बोले ऐसी कोई बात नहीं, वहां पर भी बाबा है, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट योर सर्विस है और आपको जाना जरूरी है, बाबा के ऑर्डर फॉलो करो, बस हुआ, क्योंकि आपका सीनियरिटी भी जा सकता है, आप लेट करेंगे। तो मैं फिर बड़ी मुश्किल से थोड़ा आई वाज डिस्टर्ब, ज्वाइन हो गया। तो मैं 9 जुलाई को अमरावती पहुंचा। अमरावती से बिग डिवीजन, महाराष्ट्र में 6 डिवीजन एक होता है। तो मैं मॉर्निंग 10 जुलाई को गया। 10 जुलाई वाज माउंट डे, प्लानिंग इज 10 जुलाई। ये भी देखो बाबा की 10 जुलाई को मुझे ज्वाइन होना ही पड़ा। बाबा ने कहा था यदि पॉसिबल नहीं हो तो तुम मौन मत रखना, उपवास वगैरह करना, तो मुझे ज्वाइन होना पड़ा, क्योंकि वो वहां तो बात करनी पड़ती कि आप ज्वाइन हो रहे क्लास 1 के लिए। तो मैं ज्वाइन हो गया बाबा को नाम लेके, और बाबा को याद किया कि अभी पोस्टिंग तो हो गया, अभी ट्रेनिंग शुरू होता है। तो मुझे ट्रेनिंग दी गई 3 महीने के लिए माहुली जहांगीर, विच इज 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम अमरावती। तो वहां पर मुझे ग्राम सेवक के साथ अटैच करके 1 साल का प्रोबेशन होता है। सो नेक्स्ट डे मैं बस से चला गया, वहां जाके देखा तो ग्राम सेवक आने के थे। तो 5 to 10 मिनट्स बाद ग्राम सेवक आ गए। तो इट वाज मेरे लाइफ का फर्स्ट इंसिडेंट था कि मैं 10 जुलाई को ज्वाइन हुआ, और फर्स्ट आवर ऑफ माय ज्वाइनिंग। तो मैं देखता हूँ तो ग्राम सेवक आता, उसको बोला मैं आई एम अ प्रोफेशनल डेप्यूटी सीईओ, मैं हियर फॉर ट्रेनिंग। तो उन्होंने जैसे वो ग्राम पंचायत का ताला खोला तो मुझे एक किचन दिखी, उसमें था कि डोंट वरी बी हैप्पी। अरे वाह। हाँ, वो किचन में गोल सी किचन थी, बाबा का फोटो था वो राउंड पुराना वाला, डोंट वरी बी हैप्पी आया। मैं पापा ने बताया था कि जहां पर भी जाएंगे तो बाबा ही है वहां पर। तो मैं बहुत खुश हो गया, अरे बाबा फर्स्ट डे ऑफ माय ज्वाइनिंग एंड दिस इज फर्स्ट मिनट ऑफ एक्चुअली ज्वाइनिंग, और बाबा ने फर्स्ट मिनट को मुझे दर्शन दे दिया, और डोंट वरी बी हैप्पी बोल रहे बाबा। तो चलो मैं बहुत खुश हो गया। बाद में फिर वो ग्राम पंचायत में गया तो उसको पूछा मैंने, ग्राम से भाई साहब आप कैसे, क्या आपके पास एक किचन आ गई है? तो बोलता आई एम बाबा लवर। अरे वाह। हाँ, यहाँ पर एक पोस्टमैन है, वो उस टाइम शायद खंडाले काका की वजह से काफी पोस्ट वाले लोग भी बाबा लवर हुए थे। वो पोस्टमैन रेगुलर फॉलो करते बाबा को। तो एवरी ईयर हम लोग 31st को आते हैं, और हर साल विदर्भ का जो मतलब एक स्टाइल है कि 10-15 लोग नए लेके आते हैं, अमरावती का जैसे लेते वैसे वो भी पोस्टमैन लाते थे। तो वो लाकर उन्होंने बताया कि हम लोग हर साल आते बाबा का अमर तिथि को,
प्रार्थना वगैरह बोलते हैं। हर साल हम लोग 20-25 लोग बाबा लावर है गाँव में, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये छोटे बिल्कुल गाँव में बाबा के लोग हैं। उसके बाद वो 3 बज गए, तो मैं भी काफी थक गया था, तो बोले अभी ऐसा करो साहब, ये बुक्स ले लो और आप 7-8 दिन पढ़ो, बाद में फिर आओ मेरे को पूछने, मैं अभी आपको बस पकड़ के देता हूँ। तो वहां से क्या होता है कि अमरावती से इंदौर वगैरह बसेस चलती है। तो दैट विलेज वाज ट्रैक पर ही था इंदौर के, तो वो इंदौर से अमरावती की बस आती, लग्जरी बस। मुझे फिर वो कंडक्टर को बोलता है कि ये साहब को छोड़ दो, और मैं कंडक्टर के राइट हैंड में बैठता हूँ और मैं उनको बाय बाय करता हूँ कि मैं आता हूँ 4-5 दिन के बाद बुक्स पढ़ के, बाय। तो जैसे मैं बैठता हूँ तो सामने एक फोटो नजर आता है, रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी। मतलब इट वाज सेकंड, बाबा का एक ही दिन में सेकंड दर्शन होता है, जो कि हमेशा बाबा के पोजेस, अभी वो रियल हैप्पीनेस का काफी फेमस पोज है, अभी तो नहीं आ रहे पोस्टर्स, लेकिन वो फ्रेम लगी हुई थी। मैं बोला क्या बाबा आज एक दिन में 2 बार दर्शन, डोंट वरी बी हैप्पी, गाड़ी में बैठो वहां पर भी आप हाजिर, और रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी बोल रहे हैं। तो मैंने कंडक्टर भाई साहब को पूछा, भाई साहब ये कैसे आपके पास बाबा का फोटो है? तो बोलता है कि यहाँ पर कोलेटकर करके बाबा लावर है, उनकी 10 से 15 बसेस है, हमारे हर एक बसेस में मेहर बाबा की फोटो लगी है, और रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी ये फोटो मिस लगती। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बाबा क्या है कि जहां भी जाओ बाबा आपके साथ है। यदि आप 600 किलोमीटर भी गए तो भी बाबा मेरे साथ ही थे। वहां पर मैंने अच्छा काम किया, वहां पर नेशनल अवार्ड भी मिला मुझे। सो बोलने का मतलब है कि बाबा हर वक्त आपको मदद करते हैं, लेकिन आपका विश्वास के साथ कन्विक्शन होना भी इट इज अ मस्ट, बहुत जरूरी है। बाबा बराबर आपको वो लेकर जाते हैं। तो ऐसे काफी एक्सपीरियंसेस है जो भी मतलब इन सर्विस है, जो बाबा के साथ जुड़े हैं, बाबा हमें हेल्प करते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। नितीन, आता एक भजन म्हण, मग त्याच्यानंतर दीपक रेडी आहे, दीपकला सांगतो. जी 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 लवकर म्हण. मैं एक मराठी भजन बोलता हूँ। जरूर जरूर बोलिए बोलिए. एक रूप झालो आम्ही मेहराच्या भजनात नाद. एक तारी संगे एक रूप झालो, एक तारी संगे एक रूप झालो, आम्ही मेहराच्या भजनात नालो, आम्ही मेहराच्या भजनात नालो, आम्ही मेहराच्या भजनात नालो, आम्ही मेहराच्या भजनात नालो. माळ शोभे आत्मरूप शांती, माळ शोभे आत्मरूप शांती, भक्ती भाव दोन्ही करू हाती, भक्ती भाव दोन्ही करू हाती, म्हणणार आहे का भाई? वेळा विरक्तीचा तू भजन म्हणणार आहे का? कपाळाशी झालो, वेळा विरक्तीचा तू भजन म्हणणार आहेस का? हा? आम्ही मेहराच्या ते झालं तर मला सांग. आम्ही मेहराच्या भजनात बाबांच्या भजनात नालो. भूक भाकरीची छाया झोपडीची, भूक भाकरीची छाया झोपडीची, निवाऱ्यास घ्यावी खूप तोडडीची, निवाऱ्यास घ्यावी
तारी संगे एक रूप गानो, एक तारी संगे एक रूप गानो, आम्ही मेरे राजा भजनात नालो, आम्ही मेरे बाबाच्या भजनात नालो. आम्ही मेहराचा भजनात नालो. मेहर बाबा की जय. सर आप लोग ने कहीं प्रोफेशनली सीखा है क्या ये गाने का? एंड ऑल्सो ये तबला बजा के गाना इज मोर डिफिकल्ट एक्चुअली. He is actually, Sam, he is a very good singer, but playing tabla, he was slowly little, उसका थोड़ा आवाज हल्का आ रहा था. नहीं, बराबर ठोका उन्होंने. अच्छा, अभी हमारे my another brother Deepak Singh, हाँ जी. he is waiting, he is in Ahmednagar. After that, I will narrate 2 or 3 of my incidences, Sure, like sure. Nitin has said. Then again, Deepak will again sing. We will sing whatever time is allotted to us. We'll finish within. We have lot of things to share, but जी. obviously time is a constraint. Deepak एक तो मना था. सभी को जय बाबा. जय मेहर बाबा सर. मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल. मैं आज इस अवसर पर एक मेरे पिताजी ने एक भजन लिखा था बाबा के लिए, तो भजन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ. ये भजन के बोल है लागी लगन मेहर से. हाँ, अच्छा. तो उनको बहुत पसंद था, हमेशा वो गाते थे, तो वही भजन मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ. लागी लगन मेहर से ओ हमरी, लागी लगन मेहर से, लागी लगन मेहर से ओ हमरी, लागी लगन मेहर से. जगहे भाग हमारे प्रभु ने दर्श दियो रे, जगहे भाग हमारे प्रभु ने दर्श दियो रे. बेभान बन गए दर्श से, बेभान बन गए दर्श से, हमरी लागी लगन मेहर से, ओ लागी लगन मेहर से, ओ हमरी लागी लगन मेहर से. प्रभु कहते आया हूँ जगाने, ना समझो कुछ और सिखाने. प्रभु कहते आया हूँ जगाने, जगाने, ना समझो कुछ और सिखाने. जागो मोह नींद से, जागो जागो रे मोह नींद से, हो हमरी लागी लगन मेहर से, हो लागी लगन मेहर से, हो हमरी लागी लगन मेहर से. चहु और है छाया है अंधेरा, प्रभु प्रगटत का होत इशारा. चहु और छाया है अंधेरा, प्रभु प्रगटन का होत इशारा. पहचानो उन्हें समय सोच के, पहचानो उन्हें समय सोच के, हो हमरी लागी लगन मेहर से, हो लागी लगन मेहर से, रे हमरी लागी लगन मेहर से. भगवन मेरे है प्रेम के प्यासे, भगवन मेरे है प्रेम के प्यासे. यही ऊंचा एक मार्ग सिखाते, मेहर में रहे प्रेम के प्यासे. यही ऊंचा एक मार्ग सिखाते, मेहर में रहे प्रेम के प्यासे. यही ऊंचा एक मार्ग दिखाते, बांधो रे उन्हें प्रेम डोर से, बांधो बांधो रे प्रेम डोर से, ओ हमरी लागी लगन मेहर से,
ओ लागी लगन मेहर से, ओ हमारी लागी लगन मेहर से, लागी लगन मेहर से, ओ हमारी लागी लगन मेहर से। अवतार मेहर बाबा की जय। ये जो गीत है मेरे पिताजी ने 1951 में लिखा है। तब मधुसूदन जी के साथ में बहुत से, यानी उनके घर, हमारे घर पे ही काफी रचनाएं हुई है मधुसूदन जी के, तो उसी दरमियान का ये गीत है, तो आपके सामने में पेश किया। वेरी नाइस, वेरी Thank you. नाइस। जय बाबा। संजय जी दीपक अजून एक म्हणतो का भजन? ठीक है, हाँ, हा लवकर एक भजन म्हण. ओके। ये जो गीत है पिताजी को काफी पसंद था, उनका सबसे पसंदीदा गीत है और आप लोगों को भी पता है। आए रे आए रे आए रे आए गोकुल के फिर से सावरिया, लेके जा तू की अपनी बांसुरिया, फिर से सुनाने आए रे आए रे आए रे आए रे आए गोकुल के फिर से सावरिया, लेके जादू की अपनी बांसुरिया, फिर से सुनाने आए रे आए रे आए रे आए रे। गीता सुनाई अर्जुन को, जिसने गीता सुनाई अर्जुन को, साग खाया विदुर जी के घर को, साग खाया विदुर जी के घर को, जिसने पागल बनाया गोकुल को, जिसने पागल बनाया गोकुल को, वही यशोदा के प्यारे कुंवरिया, वही यशोदा के प्यारे कुंवरिया, फिर से सुनाने आए रे आए रे आए रे आए रे आए गोकुल के फिर से सावरिया, लेके जादू की अपनी बांसुरिया, फिर से सुनाने आए रे आए रे आए रे आए रे। अनहद का संगीत, अमर शांति का गीत, अनहद का संगीत, अमर शांति का गीत, सुन के जागे सत्प्रीत सत्य होता प्रतीत, सुन के जागे सत्प्रीत सत्य होता प्रतीत, हुई मदहोश ब्रिज की ललनिया, हुई मदहोश ब्रिज की ललनिया, ऐसी मधुर मोहन की मुरलिया, ऐसी मधुर मोहन की मुरलिया, हुई मदहोश ब्रिज की ललनिया, हुई मदहोश ब्रिज की ललनिया, हुई मदहोश ब्रिज की ललनिया, फिर से सुनाने आए रे आए रे आए रे आए रे आए गोकुल के फिर से सावरिया, लेके जादू की अपनी बांसुरिया, फिर से सुनाने आए रे आए रे आए रे आए रे। देखो आए मेहरबान गोकुल को, देखो आए मेहरबान गोकुल को, प्रेमी जनो चलो रे देखन को, प्रेमी जनो चलो रे देखन को, धन्य हो जाओ लेकर दर्शन को, धन्य हो जाओ लेकर दर्शन को, जिसने दुनिया को सारे मोह लिया, जिसने दुनिया को सारे मोह लिया,
हाँ ऐसी मधुर मोहन की मुरलिया है, ऐसी मधुर मोहन की मुरलिया, जिसने दुनिया को सारे मोह लिया, जिसने दुनिया को सारे मोह लिया, जिसने दुनिया को सारे मोह लिया, फिर से सुनाने आए रे आए रे आए रे आए रे, आए गोकुल के फिर से सावरिया, लेके जादू की अपनी बांसुरिया, फिर से सुनाने आए रे आए रे आए रे आए रे। अवतार मेहर बाबा की जय। will share her experience for a few minutes, and then I'll share my experience, and then we'll again come back to bhajan. Jai Baba. Kappu, Kappu. I think she may be not ready. We have a time. So what I will. हेलो Kappu has kaha. Yes. हो हाँ चल. जय बाबा जय बाबा. हाँ. जय बाबा जय बाबा। मैं कल्पना थाड़े गोस्वामी। मेरा बाबा के साथ मेरा कैसा बाबा का दर्शन हुआ उस बारे में थोड़ा सा मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ। हम लोग, मैं संजय मेरा बड़ा भाई, उसके बाद मैं, मेरे बाद में छोटा भाई राजीव थाड़े, अपन ऐसे 4 भाई बहन है। हम लोग जब छोटे थे तब वी आर स्टेइंग इन टुगेदर, हमारा इकट्ठा फैमिली रहता था। तो जब भी बाबा गुरु प्रसाद में आते थे तो हमारे घर में एक अच्छा माहौल रहता था कि सुरु काका है, नंदा काका है, हमारी मोठी आई, हमारी मम्मी शीला काकू, हमारी दादी, सब लोग एकदम गड़बड़ होती थी। हमको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, पर वो लोग बोलते थे जल्दी जल्दी खाना वाना बना के। टांगे, उस समय व्हीकल कुछ नहीं रहता था तो टांगा रहता था, तो टांगे वाले को बोलते थे और हम जैसे है वैसे हमको जल्दी जल्दी तैयार करके टांगे में बैठ के बाबा के दर्शन के लिए हमको गुरु प्रसाद लेकर जाते थे। वहां लेकर जाने के बाद बाबा का हमने काफी बार दर्शन लिया। बाबा का दर्शन लिए तो अभी तक मुझे याद है बाबा का वो चेहरा, गुलाबी गाल बाबा के, और हमारे आई ने और बाबा ने बाबा के माथे पैर पे हमारा सिर रख के बाबा का दर्शन लिया है। और हमारा उस समय जैसा नितिन ने बोला कि मैं, अलका, संजू और नितिन, हम लोग ने सबने मिलके बाबा के सामने आसावा सुंदर चॉकलेट सा बंगला ये डांस भी किया था। उसके बाद में बहुत सारे जो किस्से हैं कि पूना सेंटर में भी हम लोग जब जाते थे तो उसी समय सब हमारी फैमिली इकट्ठा जाती थी और बाबा के दर्शन वहाँ होते थे। बाद में जब हमारे घर में ऐसा एक ये था, दादी ने बोला था कि जब भी जिसका भी मंथली पेमेंट होगा तो उस समय, हर समय नंदा काका जो हमारे बीच वाले अंकल है, नरेंद्र थाड़े, वो प्रसाद लाते थे और बाबा के सामने हम लोग सब भजन गाते थे। भजन होने के बाद दादी और नंदा काका हमको बोलते थे काकू की तुम्ही ना देवासमोर नाक घासा आता तुम्ही खाली वाकून, और वैसा हम वैसा नाक मतलब करके बाबा को बो डाउन करते थे और उसके बाद फिर हमको प्रसाद मिलता था। दूसरी बात, यानी मुझे MBBS का एडमिशन लेना था मगर 12th स्टैंडर्ड में यहाँ पे नहीं मिला था। तो मैंने मेरे अंकल LB थाड़े उनको बोला था कि मुझे ऐसा ऐसा होना है, डॉक्टर बनना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको डॉक्टर बनना है तो चलो मेरे साथ नगर में। वहां पर उनके वजह से मैं वहां गई, वहां रही, वहां पे 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम दिया। उसके बाद मैं डॉक्टर बन गई। उसके बाद में मेरा पोस्टिंग विलेज में हो गया, मगर हर वक्त बाबा ने मुझे दर्शन दिया और बाबा के मार्गदर्शन से ही मेरा सब कुछ अच्छा होते गया। उसके बाद में पोस्टिंग विलेज में हो गया। विलेज के पोस्टिंग 8 साल था, बहुत डिफिकल्ट था। मुझे ट्रक, बस, ST कभी चलते भी जाना पड़ता था। 8 साल बाद संजय, मेरे एल्डर ब्रदर, उन्होंने ट्राई करके मुझे पूना मेंटल हॉस्पिटल में मुझे पोस्टिंग मिल गया। यू कैन नॉट बिलीव, अभी तक मैं 29 इयर्स में बाबा की ब्लेसिंग से और संजय की वजह से मेंटल हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। दूसरी बात, मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गई थी तो मेरा यंगर ब्रदर मेरे साथ था। आई वॉज स्केयर्ड, मैंने कहा कि मैंने अभी सीखना नहीं है कुछ नहीं। उसने मुझे ढकेल के बोला जा तू, तुला बाबा आहेत सोबत, काही होत नाही।
there was only one post for post graduation for psychiatry. और सब लोग इंटरव्यू वगैरह ले रहे थे. इंटरव्यू हो गया, सब हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया. बाहर आने के बाद भी मैंने मेरे भाई को बोला कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मगर उसने कहा कि नहीं अभी तुमको करना ही है और तुमको इस तरह से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया. आई बिकम साइकियाट्रिस्ट और अभी 29 इयर्स मैंने वहाँ पे पेशेंट के सर्व किया है और मुझे अच्छा अनुभव है बाबा के. और बाबा हमेशा हमारे मतलब हर वक्त बाबा का नाम हमारे मुख में रहता है और बाबा हमको अच्छी तरह से गाइड करते हैं. जय बाबा. और जय बाबा. जय बाबा. Can you hear me now? Yes, we can now. Yeah. Sam, I will narrate a few of my experiences, 2-3 experiences. One Ji. experience was that when I was a district collector, I became an IAS in 1989. I was a district collector. In 2000, I'm just going to hurry up because we have a time. I have got 3-4 experiences, but lovely experiences. Go ahead, sir. Go ahead. 2000, there was an unprecedented rainfall in the district, about 1400 millimeter, which was in 2.5 days time, which is equivalent to the annual rainfall of the district. So that much rainfall took place in the unprecedented floods which took place, in which more than about 242 people died. It was one of those we did airdropping the food and everything. We did it for a very long time. So what happened was we were getting a news from all the interior part that this is happening. Jharkhand and Bihar and all, which comes to the Bengal, and my district was in the border of this thing. So we were getting, and the water was rising in all the rivers, small, big, perennial, a small rivers and all. So there was one particular hamlet was there. There were 400 people who were staying, and that hamlet was there, and we didn't know how to communicate to them because on both the sides of that hamlet, the water was increasing. So we didn't know how to communicate to these guys to go to a safer place. So what happened was, in that particular place, in that hamlet, there was only 1, 2 or 3-storied building, 3-storied building of one of the rich man who happens to be the pradhan of that this thing. And there was only one public phone. Those days, you know that there's a famous Sukram had, the antennas and all. So that phone was there with the antenna, BSNL, whatever is there. So what happened was I was very much tense and busy trying to look after everything. So we were giving instructions to all the block development officers and everybody. We were very busy in giving instruction to block development officers, saying that do this, do that, this, rescue, relief, giving. So I told one of my assistants, now we have got a news saying that this thing, kindly telephone these guys in that particular small basti to get them to that building which is there, and usme jaake upar mein jaake aap ruk jao. So he said he was trying that phone and he was not getting the phone. I went there. There was a small mandir in which Baba's photos was there. So I went there and did a prayer, Baba's prayer and Aarti and this thing. And I said, what is the fault of these poor people? Please save them. And I did it, and then I got busy and I told this guy, he said, sir, I am trying, I am not getting the phone. I forgot after that. After 2-3 hours, this guy comes to tell me, sir, phone हमारा एक बार लग गया, मैंने कुछ बोला, लेकिन मुझे पता नहीं whether they heard it or not, and phone got disconnected. And I said, what to do? I was so busy and I was listening, so I kept on doing my job. After 48 hours, when the water receded, and then we tried to find out what happened. Then we came to know that one fellow who picked up the phone, got the news, and he conveyed to everybody, and everybody was saved, and no casualty took place, only the kacha houses and all. That is how Baba says that I don't do miracles, but he listens to the prayers of the people. He has said yes. He said that the only miracle which I did was the creation of this universe. This is another incident was there. I was a election observer
in a place. We have another 15 minutes. I'll finish in 5 minutes. Then we'll have 2 more bhajans, and then so I was an election observer. It so happened that I got a constituency which was Medak in Andhra Pradesh. So I went there. To my surprise, you know what happened? Every observer is given a liaison officer, some officer from the revenue service or land or something. So the fellow who was my liaison officer was Ram Krishna. He saw my name. He was Baba lover. So he was more interested in showing me Baba centers in and around than showing the polling stations, which is his duty. He showed me all those things, and then we took to everything. So these things do happen. Another time I was an election observer, and my duty kahan lag gaya malum hai kya? Bera Mangla ke bagal mein. Again, I got an opportunity to go. And one more incident which I'll tell you, which is a very, very interesting incident. My uncle is there. My uncle was there in Calcutta, in a very secured Fort William, which is just like the Southern Command in the Pune. We have an Eastern Command in Calcutta. It's called Fort William. In that place, we had organized 3 days Baba's program in, I think, 2001. And we initially thought that only about 50-60 people will come. To our surprise, 800 people came from all over. And our leader was KSN Murthy, great Murthy, who was our leader. Under his guidance, we were following, and my uncle was there. I was a collector in nearby districts, about 2.5 hours. So what happened was we got a lot of unexpected help from here and there and this, that, and all troubles and this. What happened was we had a main program on 9th of that particular month. I think it was October or November or December sometime. So 9th was the main program for which we fought, and we got with great difficulty, we got a Mahajati Sadan. It's a very big in Calcutta, and we had Pratap had come, Madhusudan had come, everybody had come. And it so happened on that particular day, I was involved in organizing the whole thing with my uncle was the leader, and after that, my uncle was there, and Mr. Murthy and all. So on that particular day, in my district, governor was coming. Governor Viren Shah was coming. So there was no chance I could attend the function. Governor was coming because 50 years back, there was one school in which the governor had come as a government school, which is a very good school. The then governor, 50 years back, he wrote that that time it was the 150th year of the school, that of the 100th year, the then governor came. He said, जब इसका 150वां साल कंप्लीट होगा, उस समय पे मैं चाहता हूं कि उस समय पे जो गवर्नर रहेगा वो आएगा. Governor was supposed to come and stay with us for 1 day, so I had to be there during the whole time. But what happened, it was a winter day, so he came by a chopper. And we made our circuit house very nice, पूरा सब कुछ बनाया, सब कुछ किया. Chopper से वो आए, and it so happened that in winter in Eastern India, the sunset happens little early. And he said कि I have to go early. I have to go today. I was not supposed to. I was supposed to stay. We had made all arrangement, but I'm going. He came by a chopper. And the principal secretary to the governor was a senior lady officer. I was known to her. So he came, we finished the function. It's around 3:30 or so. It's about 40 minutes helicopter drive from this thing. And the program in Calcutta was about to start by 5 o'clock. So what happened was I didn't know what to do. So डरते हमने वो principal secretary को पूछा कि सर तो वापस जा रहे हैं. I have some very important program. Can I barge into your chopper? Can I get into the chopper? And Viren Shah he was from Thane, that Mukund Steel and Iron. He was the owner of that. So he used to talk to me in Marathi. So काय Thane साहेब काय सांगतात? He asked to this thing. Sir, he wants to come. He has some family engagement in Calcutta, and he wants to go today. He said, is there any space in the chopper? I said, I ran from there without whatever I was wearing. I ran
I gave a phone, my people who are working in the house, my family, everybody, they had gone, my wife and all, everybody is already there in Calcutta, and I am looking here. This thing. I got into that chopper and I landed up. I told my friend that be ready with the vehicle. I went there, quick shower, and I entered exactly at 5 o'clock when the program was on. So this is Shabash. what is the blessings of beloved Baba. So there are many such incidences which happen to us during our life. Baba says that he doesn't. Now, these are many things. There are a lot of things to share, but we have a time. I would request now Nitin to sing, Nitin and Surendra Thade to sing one more bhajan, and Deepak, you are ready. I think around 7 o'clock we'll have prayer and aarti. We have 10 minutes more time. Okay. Nitin. Yes, yes. Jai Baba. क्यों नाज न हो मोहे किस्मत पे, क्यों नाज न हो मोहे किस्मत पे, जो मैं हर दर्ज नसीब हुआ। नाज न हो मोहे किस्मत पे, जो मैं हर दर्ज नसीब हुआ। वो किस्मत वाले थोड़े हैं, वो किस्मत वाले आड़े हैं, जिनको दर्शन का नाम हुआ। वो किस्मत वाले थोड़े हैं, जिनको दर्शन का नाम हुआ। नाज लो मोरे किस्मत पे, कई लाख तरसते दीवाने, कोई दिन गिनते, कोई दर पे खड़े, कोई ध्यान लगाए बैठे हैं, कोई ध्यान लगाए बैठे हैं। अब तक न दर्श का लाभ हुआ। नाज लो मोरे किस्मत पे, जो मैं हर दर्श नसीब हुआ। नाज लो मोरे किस्मत पे, है ऐसी महिमा दर्शन की, भक्तों ने कही, संतों ने कही। 100 बार पढ़ा सुन कर न हुआ, 100 बार पढ़ा सुन कर न हुआ। वो एक दर्श से काम हुआ। 100 बार पढ़ा सुन कर न हुआ, वो एक दर्श से काम हुआ। क्यों नाज न हो मोरे किस्मत पे, एक बार कोई जो देखे उन्हें, एक बार कोई जो देखे उन्हें, नहीं ज्ञान सुनाने की आदत। वो ऐसी हस्ती है जग में, वो ऐसी हस्ती है जग में, जो दर्शन से मोहे ज्ञान हुआ। वो ऐसी हस्ती है जग में, जो दर्शन से मोहे ज्ञान हुआ। क्यों नाज न हो मोरे किस्मत पे, नहीं आस है सिद्धि शक्ति की, नहीं मोक्ष की है, नहीं
मुक्ति की, नहीं आस है सिद्धि शक्ति की, नहीं मोक्ष की है, नहीं मुक्ति की है, आस तो रे नित्य दर्शन की है, आस तो रे नित्य दर्शन की, मधुसूदन मांगत दीन हुआ है, आस तो रे नित्य दर्शन की, मधुसूदन मांगत दीन हुआ हो, किस्मत वाले थोड़े हैं हो, किस्मत वाले आड़े हैं, जिनको दर्शन का नाम हुआ जो नादन हो, किस्मत से जो हर ये नसीब हुआ जो नादन हो किस्मत पे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। Jai Baba Sam. Our Motiai is there. We all are there. Whatever जिसको जिसको आपने सुना है, जितने भी लोग हमारे जो बाबा प्रेमी जो है, सब लोग हमारे फैमिली के लोग फर्स्ट अमर तिथि से अभी तक की जितनी भी अमर तिथि हुई है, सब में हम लोग शामिल रहे हैं। एंड हम लोग शामिल रहे हैं हर एक अमर तिथि में। जो शुरू हुई थी पहली बार, वो कैसी शुरू हुई, मैं अगर आपको सैम, if you give me an opportunity some other time, I will narrate how the Amar Tithi started and all. We have done volunteers duty as a child when growing up. Also हम लोगों को बाबा की बॉडी को टच करने की, बाबा ने जो बॉडी ड्रॉप की थी, दीपक वगैरह है, नितिन, हमारे जो जनरेशन है 71, हमारी जो जनरेशन है, हमारे पूरे, हमारी मोठियाई जो है, इन्होंने हजार मैंने सैकड़ों बार बाबा के सामने प्रोग्राम किया हुआ है। तो वो भी अभी कुछ बोलना चाह रही है, तो मैं बाद में कभी आप मौका देंगे तो दूंगा, 2-4 मिनट वो बोलेंगे, और आपका जब टाइम हो जाएगा तो हमको सिग्नल दे दीजिए, प्रेयर एंड आरती उसके हिसाब से शुरू हो जाएगी। नहीं, वो कोई बात नहीं, लेट हर स्पीक। उनको जितना भी थोड़ा ज्यादा भी टाइम लेवे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको दिल खोल के बोलने दीजिए। ते तुमचे अनुभव सांगा। बाबा के साथ में मेरे अनुभव तो इतने हैं कि शायद रात भर बैठ के भी बताऊंगी तो पूरे नहीं होंगे। वैसे तो मैं शादी के बाद से बाबा को मानने लगी हूँ, पर पूरी तरह से मैं नहीं मानती थी बाबा को, क्योंकि मेरे घर के सब लोग उनको भगवान मानते थे, पर मेरा मन उनको भगवान मानने के लिए तैयार नहीं था। मेरे आंखों के सामने भगवान यानी राम, कृष्ण, शंकर, ऐसा सब मैंने मान लिया था। तो बाबा को मैं भगवान नहीं, पर उनको एक बहुत ही बड़े महान, ऐसा मैं उनको मानती थी, और उनके भजन में बैठती थी, आरती में बैठती थी, सब घर में मैं उनकी पूजा करती थी, पर भगवान मानने को तैयार नहीं थी। फिर ऐसे में कई साल ऐसे बीते कि मेरे पर संकट आए, मेरे आवर्षण हुए, तो मैं हमेशा यही बोलती थी मेरे घर के लोगों को कि ये इतना बाबा को अपन मानते तो बाबा हमको क्यों इतने तकलीफ देते हैं? बाबा ने कुछ तो हमारे लिए करना चाहिए। तो उस समय हम लोग पूना में रहते थे, बाबा भी पूना में कभी कभी आते थे। गर्मी के दिनों में बाबा गुरु प्रसाद में रहते थे, तो बाबा के कानों तक बात गई
बाबा को बताया गया मंडली की तरफ से कि ये मिस्टर एंड मिसेस थाड़े ये लोग आपस में झगड़ा करते हैं और गुस्सा है आप पे। तो बाबा ने एक बार बाबा ने मुझे बुलाया कि तू मेरे पास आ। मैं बाबा के पास गई। मैं थोड़ा सा रोने लगी क्योंकि मैं दुखी थी तब तक। बच्चे के लिए मैं बहुत ये थी, लोग भी मेरे को नाम रखते थे तो मैं बहुत दुखी होती थी। तो बाबा मेरे को पूछने लगे। मैं जब गई बाबा के पास तो बाबा मेरे को बिठाए सामने, पूछने लगे तू मेरे को क्या मानती है। मैं तो अपने मन में तो भगवान तो नहीं मानती थी, तो मैं फिर भी झूठा झूठा मैं आपको भगवान मानती, ओ भगवान मानती। तो तू क्यों दुखी रहती है। तो मैंने बताया बाबा जब आप भगवान हैं तो आप क्यों मेरे ऊपर इतना अत्याचार करते हैं। मेरे को बच्चा तो देते हैं और ले भी लेते हैं, जब लेना का है तो देते क्यों हैं, मेरे को दुखी क्यों करते हैं। यानी थोड़ा सा मैंने तकरार बाबा से किया। बाबा हंस रहे थे। बाबा बोलने लगे तू मेरे को भगवान समझती है ना, क्या समझती हो तू, भगवान समझती है ना, तो मेरे पर विश्वास कर कि मैं भगवान हूँ। और मैं भगवान तेरे को बोलता हूँ कि तेरे को इतने अच्छे ये दूंगा कि तू बहुत खुश होगी। और उस समय बाबा ने ऐसी एक्टिंग करके बताया। तो मैं तो वैसे सुन तो लिया। और बाबा ने फिर बाद में बाबा के पास केक रखा था, उसमें हाथ डाल के बाबा ने मेरे हाथ में दिया और चॉकलेट दिए और बोले विश्वास कर मेरे पर, ये प्रसाद खा ले। मैंने प्रसाद खाया और बाबा ने उसी महीने बाबा ने अपना ये दिखा दिया मुझे। मेरी बड़ी बेटी वो जो अभी कनाडा में है वो आ गई, पर उसके पूरे जन्म तक बाबा ने हमेशा मेरी फिक्र लिए, हमेशा पूछते थे कैसी है तू, क्या सोचती, तू मेरा नाम लेते जा, बस सोते वक्त तू मेरा नाम लेके सोना। मैं तो करती थी वैसे बाबा पूरे। और बाबा ने बच्ची हुए बाद भी अपने पास डायरेक्ट अपने पास बुला लिया। गुरु प्रसाद में बाबा थे, घर को नहीं जाने दिए, मेरे पास लेके आना। बाबा ने गोद में लेके उसको प्यार किए, मेरा माई के पास भेजे उसको, मेरा माई ने भी गोद में लिए। और इस तरह मैं वो बच्ची को लेके बाबा के पास फिर बस। और बाबा ने एक बोला कि इसको ना काला टीका लगाते जा। लोगों की वो पुकार, उस समय पुकार दरवाजे पे खड़े रहते थे, तो बोले वो काले की नजर लगेगी। हमें बेचारे पुकार अपना कुछ निर्विकार चेहरे से खड़े रहते थे, कुछ भी उन पे असर नहीं। बाबा ने ऐसा बोले बाद भी उन पे कुछ असर नहीं हुआ। और इस तरह फिर बाबा ने काफ़ी ये किए कि तुम लोग 3 महीना बच्चे को बिल्कुल यानी चुंबन नहीं लेने का। यदि बहुत तुमको प्यार आएगा तो उसके हाथ को अपना हाथ टच करके अपने हाथ का चुंबन लेना, किसी को चुंबन लेने नहीं देना। और उस समय देवी का बहुत ये था। हाँ। देवी का टीका लगाने को 18 दिन में बच्ची को देवी का टीका लगाना। तो
वैसे हमारे ठाड़े साहब की मम्मी ने पूरी तरह से उनकी आज्ञा का पालन किया। और वही बच्ची बाबा के पास 3 बरस की होती है, डांस करना चाहिए, बाबा के पास जाके कही कि मेरे को डांस करना है, बाबा भी मान लिए, उसको डांस करने को लगाए। मैंने गाना बोला, बहुत अच्छे से उसने डांस किया। उस समय बाबा बोलने लगे कि इतनी सी बच्ची कितना अच्छा नाचती है, ये सबकी नज़र लगी रहेगी, इसके घर पे जाके इसकी नज़र उतारना। तो मैंने कहा बाबा आपकी नज़र, मैं तो ऐसा इजी लेती थी, आपकी नज़र क्या बाबा, आपकी नज़र रही तो अच्छी बात है ना। बाबा बहुत गुस्सा हो गए एकदम, इतने गुस्से हो के बोले तेरे को क्या मेरी नज़र क्या इतनी सोपी लगती है क्या? यदि मेरी नज़र इसको लगी तो मैं ले लूँगा। ओहो, तो मैं तो बहुत डर गई एकदम, मेरे शरीर में जैसे तो एकदम एक शहर आ गई। मैं बोली नहीं बाबा ऐसा मत करना, ऐसा नहीं करना बाबा। तो फिर तब से मैंने नज़र लगती है और नज़र उतारना चाहिए, ये बातों पे भी विश्वास करने लगी। घर जाके बच्ची का मेरी सास ने अच्छे से उसका नज़र उतारा। इस तरह बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बीमारी में बाबा मेरे को दवा देते थे, मेरे जीभ में गोली रखते थे और हर एक बार बोलते थे कि जब तू दवा लेगी तो मेरा नाम लेके जीभ में रखना। तब से मुझे अभी तक आदत पड़ी है और अपने आप मेरे मुंह से बाबा का नाम निकल जाता दवा पीते समय। बाबा ने अभी तक तो अच्छे रखे, मेरे पर कृपा की है, हर एक वक्त मौत से बचाते रहे। पर अभी मैं बाबा की को धन्य मानती बाबा। इस सारे प्रोग्राम में सैम आपका जो टॉक था और आपकी जो पर्सनालिटी है, जो चेहरा, साफ सुथरा चेहरा, और जो सबसे अच्छा लगा क्योंकि आप बिल्कुल दिल खोल के बोले थे कि मैं पहले बाबा को नहीं मानती थी, फिर यही बाबा को पसंद है, यही बाबा को पसंद है। He doesn't want all this hypocrisy, वो ढोंग नहीं उनको पसंद है। तो बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। जय बाबा। हाँ जी, I want to say a small thing. बोलिए। एक पर्टिकुलर अलका का जो किस्सा है, इससे मुझे एक चीज याद आई। जी बोलिए। This dance was done when Begum Akhtar was singing in Guru Prasad. बेगम अख्तर गाने गा रही थी तो अलका अचानक उठ गई और जाके बोली मुझे डांस करना है। She was 3.5 years old. And why I remember today, because one of our Baba lover Lata Lime. जी, correct. I was going to say. Yeah, and one who used to sing Begum Akhtar's हमारी कहीं मानो राजा जी। हाँ, राजा जी, हमारी कहीं मानो राजा जी। हाँ। Well, Lata Limaye used to come to Pune Center and used to sing वो जो मोहब्बत वाला भी गाना है ना, एक जो उनका गजल एक बहुत बाबा की फेमस थी, आई मोहब्बत अंजाम पे रोना है। So this was the time when Begum Akhtar, initially Begum Akhtar has refused. Yes. There's another small incident about my mother. My mother was a little fat, बहुत फैट थी। तो जब पहली बार बाबा से मिली तो बाबा ने पूछा हंसते हंसते मजाक में कि तुम कौन से चक्की का आटा खाती हो? My mother, something she said, कि आपके चक्की का आटा खाती हूँ। Baba started laughing. These are all whatever she has said. Many of these things are recorded in Lord Meher. Or this thing about our family, there are some incidences which are recorded in Lord Meher. I think you can conclude with whatever you want to. We will complete with Aarti and prayer. And next, give me some time. I will tell you in future about Amar Tithi. I'll give a speech, evolved and how it started.
जी when yeah. ओके सर, बिफोर वी कंक्लूड द प्रोग्राम, आज पहली एक अनाउंसमेंट तो ये कि आज धूनी का दिन है, सो लॉट ऑफ पीपल मे हैव लेफ्ट आवर दिस थिंग एंड जॉइन द धूनी का प्रोग्राम। दूसरी चीज, श्रीमती लता लिमिये देव, उनका आज बाबा के पास गए एंड शी वाज 76 इयर्स ओल्ड। उनके टाइम के वो बहुत फेमस सिंगर थे। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन पे बहुत कुछ किया और बाबा के सामने बहुत कुछ गाना गाए थे। और हमारे बॉम्बे सेंटर पे भी जो प्रोग्राम हुआ था बंगाली स्कूल में, वहां पे भी वो आके उन्होंने गाए थे। और एक चीज मुझे जो बतानी है वो ये कि ये जो हमारी कहीं मानो राजा जी, when this was being sung before Baba by Lata Limye, मैं छोटा था तभी, वो ईस्ट वेस्ट गैदरिंग के समय में, मुझे आज भी याद है कि वो बाबा ताल देते थे, हमारी कहीं मानो राजा जी, तो बाबा ऐसे ठक करके ऐसे ताल देते थे। वो आई स्टिल रिमेम्बर, वो उनको एनकरेज करते थे ये वो, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। वो एक इतना सुंदर दृश्य मेरे आंखों के सामने अभी तक मौजूद है। जय बाबा। अभी हाउ डू यू वांट टू कंक्लूड सर? Yeah, just wanted to say that when you talked about East West Gathering, there is a film, children's program. So we are also there. Myself, Nitin, हाँ, my grandmother Alka was taken in her lap, ओहो, and my mother has taken in lap Chana, and Nitin was taken in lap by Motiai, who is sitting there. मोटिया। That we saw it, accidentally we saw it. So Jai Baba, we have lot of things, and all of us, wherever we are there, we have large number of correspondence we are having with Baba, for which Baba has replied. Every time whenever we had written it, we have got copies of all the correspondence which we saying somebody is becoming PhD or on. So it is, customary in our house that we report to Baba. Even after Baba dropped his body, we reported to Mehra Mai regarding what has happened. When I was married, me and my wife, both of us went and met Mehra Mai. Mr. L.B. Thade, my uncle, took us to us, and the locket which is I am wearing is given it to me by Mehra Mai, and there is a small photograph which is given by Mehra Mai, which is kept in. So these kinds of images, these kinds of privilege, these kinds of Baba's blessing, and these kinds of love is bestowed upon my family by beloved Baba, and we will never let him down. We will try our best to be, all of us are very, very sincerely involved in all the activities of beloved Baba. Jai Baba, Jai Baba, Jai Baba. जय मेहर बाबा। नितीन साहेब, जी, आता एक आरती म्हणा आणि देन वी विल एंड द प्रोग्राम। यस सर। तो कौन सा जो भी आरती आपका मन में पसंद आए वो आरती गाओ। जहाँ कल्पना शब्द न पहुंचे, हाँ जी, जहाँ कल्पना शब्द न पहुंचे, ऐसे अपरंपार। हाँ, जो मर्जी। जी जी चाहिए तो मराठी आरती भी मराठी ले लेना जिथे उतारा। कल्पना मराठी। हाँ, मराठी है। हे कल्पना शब्दन दाती ऐसा अपरंपार नेती म्हणुनी वेद सगळे महिमा तुझा अपार मे हर अवतारा हर अवतारा विकारा आरती
जाळोनी दीपनावोनी पुष्पे अर्पोनी देवा पुष्पे अर्पोनी मोठे पण कामजला तुमचे तुम्हा देवोनी हे हर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन नाम निरोधनाची तुम्हीच कारक तुम्हीच तारक आदि तुम्ही अंती देवा आदि तुम्ही अंती तुमच्या समोर तुम्हीच देवा दुसरी नावती देवा दुसरी नावती मे हर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन नाम तुमची माया सर्व जनार्दन छाया ही तुमची देवा छाया ही तुमची अनंत तुम्ही कोरी न कळे वर्णावी कैसी मे हर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन नाव माझा मजला ठावन महिमा सांगू तव कैसा महिमा सांगू तव कैसा अन्यपणे मी गातो बसतो माझा बाबसा देवा माझा बाबसा मे हर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन नाम कृपावंत तुम्ही असीम तुम्हा काय कुणी द्यावे देवा काय कुणी द्यावे हेच मागणे स्मरण तुझे नित तव भक्ता भावे मे हर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन नाम नाची मे हर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन नाम मे हर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन लावणी ज्योत मनाची अवतार मेर बाबा की जय अवतार मेर बाबा की जय अवतार मेर बाबा की जय जय बाबा एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। ये प्रोग्राम समाप्त होने से पहले मुझे आप सभी लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट के लिए हमारे लता लिमिये जो आज बाबा के पास चले गए, लेट अस होल्ड अ मिनट साइलेंस इन हर मेमोरी और बाबा से ही प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा पे नजर रखें। थैंक यू एवरीबॉडी। अवतार मेहर बाबा बाबा की की जय। जय हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि ये थादेव परिवार को कभी ना कभी वापस बुलाएंगे। संजय साहब, Yes, sir. आर यू लिसनिंग? हाँ, Yes. नेक्स्ट टाइम कभी ना कभी वापस एक मौका आप लोग हमें सुनने को देना। प्लीज गिव अस अ चांस टू लिसन टू ऑल योर नरेशंस। और अभी के लिए जय बाबा। जय बाबा। मोटी आई जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा एवरीवन। जय मेहर बाबा। जय मेहर बाबा।
बड़ी सुंदर लगती हो आप, बड़ी सुंदर लगती हो। ओके एवरीबॉडी, Thank you, जय बाबा। Janice. टेक बाबा Janice, विथ यू thank you, Jai एवरीबॉडी, Baba. सब लोग बाबा, टेक बाबा विथ यू। वो नाना खेर कहते थे टेक बाबा विथ यू, बस। डेफिनेटली। जय Jai Baba, everyone. Jai Baba. जय बाबा। Janice, Jai जैनिस, Baba. Thank you. थैंक यू सर। Yes. जैनिस Jai Baba. बटन बंद करो। Jimmy, Jai Baba. Thank you, Jai Baba. Jai Baba. We enjoyed your talk. We loved it, and we want to see you again. Yes. We truly loved it. Thank you so And much. I'm very happy. Young adults, I was a lot of youngsters. Janice is a part of that, and Raki and all. They are. I have made it sure that they perform on the 31st morning. अरे This वाह, thing. हाँ। So they are coming. That group is growing up, and they will add to Baba family. They'll bring. I mean, Baba will bring more and more youngsters in his fold, and all of them are doing great job. They perform, they sing, especially lot of Bhauji's bhajan they listen. Madhusudan and Bhauji's bhajan they prepare. It's a big group. All of them of a different part, but when they come together, it is just a single family. We are very happy. Thank you very much, all Baba lovers. Jai Baba. जय बाबा। Jai Baba. Jai Baba. जय बाबा, जय बाबा। धन्यवाद। Thank you everyone for joining. Thank you, Baba, for this wonderful program. Thank you, Khadi family. हाँ, तुम्हारी स्पीच, जैनिस तुम्हारी स्पीच। Yes. I will. Thank you, Baba, for everything, and everybody stay safe, take care, and Baba Nigaba. Till we meet again next week. Thank you so much, everyone, for joining. जय बाबा। जय बाबा। Janice, Jai Baba. Janice, thank you, Janice. Thank you, Janice, Janice. thank you, Baba. Nothing. You guys, we just. Sam, thank you. दुकान Sam, बंद thank करो। you. थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। जिमी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। Baba for everything. Avatar Meher Baba. Avatar Meher Baba. Avatar Meher Baba.